আমি নিউজ মুভমেন্টের প্রিয়াঙ্কা। নিউজ মুভমেন্ট বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে নিউজ মুভমেন্ট বাংলা শুরু করছি। পাণ্ডেবসর ডিভিসি এলাকায় এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ওই মহিলার পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। This news is sponsored by PSJ TVS আসানসোল। পাণ্ডেবসর থেকে রামানন্দ পাসওয়ানের অনুসারে পাণ্ডেবসর ডিভিসি এলাকায় এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ওই মহিলার পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। মহিলার পরিবারের অভিযোগ, তাদের মেয়েকে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত নারীর নাম আরজু পারভিন, বয়স 20 বছর। রানীগঞ্জের রোনায়ের বাসিন্দা আরজু পারভিনের বিয়ে হয় পাণ্ডেবসরের ডিভিসি পাড়ের বাসিন্দা হামিদ খান ওরফে চাঁদের সঙ্গে গত মাসের 21 তারিখে। বিয়ের 1 মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ওই নারীর অকাল মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে শুরু করেছে পাণ্ডেবসর থানার পুলিশ। বিরতির পর আরও খবরের জন্য থাকুন আমাদের সাথে। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচন। আসানসোল উপনির্বাচন ভোট শুক্রবার 8,000-এরও বেশি পোলিং কর্মী এবং 8,000-এরও বেশি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী 12 এপ্রিল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য ভোট গ্রহণের জন্য বিভিন্ন 2102 বুথে রওনা হয়েছে। দিস নিউজ ইজ স্পন্সার্ড বাই মোশন। আসানসোল পলিটেকনিক কলেজ, আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং আসানসোল রানীগঞ্জ SKS পাবলিক স্কুল DCRC কেন্দ্রে সকাল থেকে ছিল মেলার মতো দৃশ্য। সকাল থেকে ভোট গ্রহণের উপকরণ ও EVM সংগ্রহ করতে আছেন ভোটকর্মীরা। নির্ধারিত কাউন্টার থেকে সামগ্রী নেওয়ার পর তা যাচাই বাছাই শেষে পুলিশ টিমের সঙ্গে ট্যাগ করে বুথের দিকে রওনা হয়। আসানসোল পলিটেকনিক কলেজ DCRC কেন্দ্র থেকে জামুরিয়া এবং বারাবণী বিধানসভা কেন্দ্র, আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ এবং কুলটি এবং SKS পাবলিক স্কুল, রানীগঞ্জ থেকে রানীগঞ্জ এবং পাণ্ডেবসর বিধানসভা কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ছেড়েছে। প্রতিটি বুথে একজন প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অর্থাৎ 4 জন থাকবেন। মোট 10,000-এর বেশি ভোটকর্মী নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করছেন। এতে রিজার্ভ জনবল রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, 1027টি ভোট কেন্দ্র চত্বরে 1878টি ভোট প্রধান বুথ এবং 224টি সহায়ক বুথ সহ মোট 2102টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। আগামীকাল আসানসোল সংসদীয় আসনের নির্বাচন, তবে থামুন, চিন্তা করুন, তারপর ভোট দিন। দিস নিউজ ইজ স্পন্সার্ড বাই ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। প্রতিবেদক টুইঙ্কেল বার্নওয়াল,
ভোটের বিষয়ে জামুরিয়া বিশ্বনাথ যাদবের একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, এটি এখানে দেওয়া হলো। कांग्रेस की अभी कैसी स्थिति है और इसका क्या पोजीशन है इलेक्शन के बाद? आसनसोल में आसनसोल चुनाव के संदर्भ में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ अजय है, दूसरी तरफ दामोदर नदी है। ये अजय और दामोदर के बीच का जो भूखंड है, इसी को आसनसोल लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ कोयला की खदानें हैं, डिस्को हैं, CLW है। इसे शिल्पांचल क्षेत्र कहा जाता है और इस शिल्पांचल में एक ऐसी संस्थाएं हैं जो राष्ट्र की धरोहर थी, उन संस्थाओं को एक एक करके बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। जैसे हिंदुस्तान केबल कारखाना का यूपीए के ज़माने में एक सर्वे होकर के उसे आयुध कारखाना में परिवर्तित करने का निर्णय हो चुका था, लेकिन मौजूदा सरकार जो केंद्र में अभी फंक्शन कर रही है बीजेपी, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक शहर पूरी तबाह हो गया बीजेपी के निर्णय के कारण। बर्न स्टैंडर्ड कारखाना BIFR में ज़बरदस्ती ढकेला गया, वहाँ वागन बनता था रेल का, उसे भी बंद कर दिया गया। इस तरह 22 कोलियरियों के ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि कोयला का भंडार मौजूद है। कोयला का भंडार मौजूद रहने के बावजूद भी कोलियरियों को बंद किया जा रहा है और उसे फिर वही प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाएगा। ये पूरा देश को एक निजी और ठेका के माध्यम से चलाने का सुनियोजित षड्यंत्र है, जो भारत माता के आंचल को छेद रहा है। जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, मेरा उनसे सीधा सवाल यह है कि आप भारत माता की एक एक अलंकार को आप नोच करके प्राइवेट कंपनियों के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में दे रहे हैं, जिससे श्रमिकों का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में उसका घाटा होगा। तो ऐसे समय में ये चुनाव हो रहा है, हमारा उम्मीदवार प्रसन्नजीत पैतुंडी भी खड़ा है। हम न्यूज़ गवर्नमेंट के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि 3 नंबर में बटन दबाकर प्रसन्नजीत पैतुंडी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी दिलाएं। और साथ ही ये अपील करेंगे कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बच्चों को बिल्कुल लेकर के ना जाएं बूथ पे जो भी जाए वो कम से कम सर पे कपड़ा या छाता लेकर के जाएं और पानी पिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विश्वनाथ यादव, सदस्य पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस, आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, CCTV कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर। প্রবীণ প্রতিবেদক মিস্টার আব্দুল মোনাফ ইলিয়াসি এবং টুইঙ্কেল বার্নওয়ালের সাথে এমপি লেন আসানসোলের কিছু বাসিন্দার সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। শুনুন তারা কি বলছেন। आसमान छूती महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस जो आज दिन पे दिन इजाफा हो जा रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में यही कहना है कि मिनिस्टर लोग को चाहिए, जीतता है और जीतने से पहले तो बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ ही करता है, मगर उसके बाद तो करे में इतना महंगाई बढ़ जाती है। अभी पेट्रोल, गैस वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो इतना बढ़ चुकी है ना कि अब आदमी को, नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी कैसे जिएगा, कैसे रहेगा, किस तरीक़ा से। जीतने से पहले तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, हमारे माँ बाप बन जाते हैं, मगर उसके बाद तो बाप रे बाप ऐसा होता है कि फिर हाँ अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, ये सब चीज़ चलती है, समझे ना।
इतने से भाई आप लोग अच्छा एक तो क्या नाम है, हर आदमी के लिए एक सहायता बनिए, हेल्पफुल बनिए। आपको सेंटर में लाया गया, महंगाई पे कंट्रोल करनी बस चाहिए। आप लोग को हेल्प, आप लोग का मर्जी, आप लोग का काम का है यही हेल्प करना। और क्या, किसी आम जनता मजदूर तो को, पैसे लगाकर ही खाएगी, हाँ कीमत पे रोक रखें। हाँ सही बात है। ठीक, आप मेरा नाम एहसान है, मैं मोहम्मद मिलन का रहने वाले हैं, हसन भाई लल। बात क्या बनाया 300-400 रुपये में गैस ले लिया था। मैं कह दे रहा हूँ ये तो आज दिन पे दिन जो बढ़ा है, महंगाई जो बढ़ रही है, आसमान छू की महंगाई, कमर और महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के जो दिन पे दिन इजाफा होता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? मेरा आम आदमी को तो बहुत ही दुखदाई वाली बात है। हर आदमी 1000 रुपये दे के सिलेंडर नहीं ले सकता। आज हम लोग फिर पीछे 10 साल पीछे जैसे चूल्हा जलाते रहे ना कोयला लेके, वो स्थिति आ गई। फिर हम लोग को कोयला लेके चूल्हा जलाना हो, सिलेंडर बोल लीजिए, आज तेल पार कर दिया है। कहाँ 30-40 रुपया 50 रुपया में पेट्रोल डीजल मिल जाता है, आज 100 के ऊपर चल गया। तो हम जैसे गरीब आदमी लोग का तो मरण होता है, आम आदमी का तो इसमें गुजारा ही नहीं है। या जो हाल हम लोग का चल रहा है, सब्जी भाजी हैन तैन सब चीज़, इसमें आदमी कुछ अब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। और क्या करें? और इसी आवाज़ को नहीं उठाने के लिए हम लोग आए हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक जाए, आम जनता तक जाए। जरूर जरूर और और तो तो- होना चाहिए। हम लोग आज वोट क्यों दे रहे हैं? वोट देते हैं कि हम लोग के लिए कुछ सुविधा पैदा हो, लेकिन यहाँ सुविधा की जगह और तो सुविधा होना असुविधा चल रहा है। ठीक, बाकी अभी सब देख ही रहा है, बिल्कुल सही। जो सही बात है वो सही है, हाँ। जो गलत है वो आपका नाम? नाम है दलमेश सिंह। इसमें रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। একজন টোটো চালকও রাজনীতির পথ বুঝতে পেরেছেন। আমাদের নেতারা কি বুঝতে পারবে? তাদের পথ বদলাবে? এই হলো সাক্ষাৎকারটি। हम गधा गाड़ी चलाते हैं, वही टोटो चलाते हैं। हाँ, तो ये आपको तो पता ही होगा कि पेट्रोल डीजल गैस का जो कीमत दिन पे दिन इजाफा होते जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग तो जो नेता को चुन के भेजते हैं, राम समझ के भेजते हैं, मगर लंका जाके रावण बन जाता है। तो इसमें हम लोग का जो क्या, हर आदमी चाहता है कि मेरा नेता अच्छा हो, गरीबों का दुख दर्द को बांटे, मगर ये नहीं पता चलता है कि जीतने के बाद यही गरीब को जो ख़त्म करने का प्लान करेगा। अभी तो आदमी जो ना, इंसान जो ना गोली या लाठी से जो नहीं मार, अभी तो भूख से जो ना ऐसा ही मार देगा कि जिससे जो ना खुद भी बच जा रहा, अब देश को भी उलटते चला जा रहा। आज जो ना देश का जो हालत है, इस किस्म का हालत है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। बड़ा आदमी जो गरीब हो रहा है, गरीब आदमी भिखारी हो रहा, भिखारी रोड पर चला आ रहा। आज जो गरीबों का संख्या जो बढ़ता चला जा रहा है, और इसके ऊपर ना प्रशासन का ही है, ना ही नेता का ही है। सबसे बड़ा बात तो ये है, यही बहुत अफसोस की बात है। हमारा देश जिस संविधान के लिए हम लोग अच्छा से अच्छा जो नेता जो चाहते हैं कि खोज के जो ना उसको बैठाएं, वोट दिए, आज जो ना उसी के जरिए आज हम लोग ठुकर खा रहे हैं। तो कम से कम हमारा देश का जो ना इंसान को चाहिए कि हमारा जो देश के लिए कुछ काम करे, और कुछ अच्छा करे, ताकि गरीबों के लिए कोई ऐसा काम करे कि ताकि उन लोगों का भी जो ना एक तो ज़िंदगी, अरे नहीं तो कम से कम आराम से कर सके। दाल रोटी के लिए ये नहीं हो सके। आज जो ना, आज बाज़ार का जो हालत है, एक मामूली आदमी दाल भात चावल खाने के लिए जो है ना, उसको जो बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इतना ही संघर्ष करना पड़ रहा है कि जिसका कोई जो ना इंतहा नहीं है। और हम लोग तो बोलिए। हम लोग तो जो राजनीति को जो चुन के जो भेजे थे, वही राजनीति आज हम लोग को आजमाया जा रहा
रा का मतलब रक्षक, जा का मतलब जनता का, नी का मतलब नियत खराब, ती का मतलब तिगड़मबाजी। ये जनता का साथ किया जा रहा है, ये जनता का साथ किया जा रहा है। तो तिगड़मबाजी आप एक बार कीजिएगा, मगर जनता जो है ना, जो आपको चुन के जो भेजा है, अगर वो तिगड़मबाजी करना स्टार्ट कर दे तो फिर जो है ना, आप जो राइटेज बिल्डिंग और नवोनो और पार्लियामेंट तो का आप कारपोरेशन का भी लायक नहीं रहिएगा, आप कारपोरेशन का भी लायक नहीं रहिएगा। इसलिए कि जनता के बारे में हमेशा सोचिए और जनता के भलाई के बारे में सोचिए। जनता खुशहाल रहेगा, पैसा से ज्यादा नौकरी तो जनता खुशहाल रहेगा तो आप भी खुशहाल रहिएगा, देश भी खुशहाल रहेगा, और आने वाला कल भी जो ना हम लोग के लिए खुशहाली बताइए। आपकी तारीफ? हमारा नाम है मोहम्मद शफीक। शुक्रिया। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide class 8 to 10, 11 to 12, science, arts, commerce, Bengali, English, graduation, honors and program, computer science plus application, economics, Sanskrit, Pol Science, philosophy, BCom. We also provide all type of competitive class like SSC, Rail, WBSC and state level exam. Phone number 993864067 and 8116183079. দরিদ্র মানুষরা রান্নার গ্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করতে অক্ষম হচ্ছেন, কিন্তু কি করবেন বুঝতে পারছেন না। इतना गैस बढ़ गया है कि हम लोग गरीब आदमी एकदम 940 रहा, फिर उसके बाद 1000 रुपया हो गया, तो कहाँ से दे सकेंगे। गरीब आदमी है, 5 गो 6 गो बेटी है, पढ़ाना लिखाना है, मर्दाना टोटो चलाता है, तो इतना सरकार महंगी करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से जाएंगे। ना खाने का कमाने का जरिया निकल रहा, ना महंगाई का। इस तरह से तो गैस, चूल्हा, कोयला, लकड़ी सब चीज़ के लिए हड़ताल है। तो सरकार आखिर क्या चाहना चाह रहा है, क्या चाहना जा रहा है, ये हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं क्या करना चाहें? क्या करना चाहें और हम लोग को कहाँ जाना है, किससे लेना है। अरे सरकार 500 रुपया 200 रुपया अगर दे के क्या करेगा। अरे कम से कम आदमी को जॉब तो दे दे। जो आदमी भाड़ा मारा जा रहा है, चोरी कर रहा, चमारी कर रहा, बच्चा लेके भीख मांग रहा, तो कम से कम उसका आदमी को नौकरी दे दे कुछ ऐसा कि ताकि अपना दाल रोटी चले और संसार को जुटा के रखे। गरीबी किसको बोला जाता है, बोले गरीबी दूर करो दूर करो, कैसे दूर होगा, कौन उपाय है दूर करने का। यही उपाय है, महंगाई बढ़ाते जाओ, यही उपाय है। और इसका सिवा तो बोलने का सरकार से कोई उपाय ही नहीं है, इसलिए कि वो तो बैठ के खा रहा पी रहा, आराम से हर जगह से पैसा आ रहा है, अपना नोट लेके आराम कर रहा। गरीब आदमी तो हर तरफ से मरंदासा है, कहीं से जो गुजारा नहीं हो रहा। जिससे जा रहा बोलने के लिए तो बहुत होगा तो 10 रुपया 20 रुपया दे दे रहा, आप जिंदगी भर देते रहोगे, जिंदगी भर तो नहीं देते रहोगे। अरे खटेगा खागा तो जिंदगी भर खा लेगा, मगर तुम्हारे चौखट पर बार बार भीख मांगने कैसे जाएगा, कैसे माए उम्मीद से जाएगा। क्या आप हर वैसा हमको देते रहिएगा। ऐसा जरिया बना दीजिए कि ताकि हमारा औलाद भी कमाए, हमारा शौहर भी कमाए और भीख मांगने का नौबत भी ना हो, संसार भी अपना चले। इतना दिन से इतना महंगी नहीं हुआ था, कोई आदमी बेफिया नहीं होता रहा। अभी तो हर चीज़ के लिए ना औरत का कमाई हो रहा, ना मर्द का कमाई हो रहा, ना औरत संसार चला सक रही, ना बच्चा पोस सक रही है। मतलब खाने बिना ऐसा जगह है कि जो मर जरा। लिखा पढ़ी सिलाई पत्तर लड़की लोग का कहीं भी ऐसा जगह है कि जो लिखा पढ़ी करके जीत सके या सिलाई सीख सके। लड़की लोग का कंप्यूटर हो, कहीं पर सरकार ऐसा जगह बना दे कंप्यूटर में कि हाँ लड़का लोग बच्चे लोग जाके सिलाई उलाई कर सके, कंप्यूटर सीख सके। पढ़ लिख के लड़की लोग घर में बैठ के घास नोच रही है, तो लड़की लोग के लिए कोई उम्मीद बनावे। दो वोट में देते रहेगा, सरकार जीतते रहेगा, सब अपना अपना पेट पोसते रह रहा और गरीब आदमी मरते जा रहा। और कहीं पर ऐसा कोई ऐसा बात का हंगामा हो रहा तो ले दे हर बात का हिंदू मुस्लिम लेके उसको जुटा दे रहा कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई। अरे हिंदू मुस्लिम सभी तो मर रहा है उसमें, एक आदमी थोड़ी मर रहा है। मरने का तो एक जरिया होना चाहिए कि चल खाली मुसलमान ही मर रहा, चल खाली हिंदुए मर रहा। यहाँ तो जो जो काम हो रहा सबके लिए हो रहा है, हर भारत का हर आदमी के लिए हो रहा है।
एक आदमी के लिए नहीं हो रहा है। ये मत समझो कि गरीब आदमी सिर्फ मुसलमान मरेगा। अरे मुसलमान मरेगा तो हिंदू भी मरेगा, पंजाबी, सिख, ईसाई सब मर रहा। और बड़ा आदमी कौन हो रहा? नेता लोग हो रहा। नेता लोग खाली वोट ले लेकर हाथ जोड़ जोड़ के वोट ले रहा, अब बाकी जो है अपने घर में एसी में बैठ के आराम कर रहा। अब जाओ भीड़ में ढुको, कोरोना में मरो, या भीड़ में मरो, या चपा के मरो, या एक्सीडेंट होके मरो, कोई बात नहीं है। आराम करने के लिए जगह है सब। मेडिकल कोचिंग सेंटर NETT AIIMS Enterprise Exams by D.K. Lal Sir, Bio Specialist, EX Jadavpur University, Kolkata. Call now 9832824975. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes for 11-12 BSc Biology classes, Zoology and Botany. Ed ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, P বর্ধমান WV। আগামী দিনে মানুষ ক্ষুধায় মারা যাবেন, কারণ মূল্যবৃদ্ধির সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখানে একজন সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার দেওয়া হলো। पेट्रोल डीजल गैस पे जो इजाफा होता जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आने वाला आगे साल 2 साल के बाद में फिर इलेक्शन है 24 में, महंगाई कदम चूम लेगा और आवाम पब्लिक एक तो गर्म ऐसे ही है, धूप में तड़प के मर जाएगा माने महंगाई से। प्लस आज जिस हिसाब से महंगाई कदम चूम रहा है, इसका नीचे होने का कोई नाम नहीं हो रहा। इतना महंगाई बढ़ गया है कि आज का पीरियड में 10 साल के अंदर में महंगाई मैंने 8 साल 10 साल मोटी 7 से 8 साल के अंदर में महंगाई कदम चूम, और किसी भी चीज़ का दाम बढ़ जाने के बाद में कम नहीं होगा। आदमी इतना माने बेबस हो गया है, और जो भी पब्लिक हो, आवाम हो, आवाज़ उठाने के बाद में भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। माने कान बंद और आँख अंधा करके आदमी जितना भी है वो काम अपना किए जा रहा है, और इसमें पब्लिक माने इस हिसाब से बेमौत मर रहा है कि आज का पीरियड में जो माने मिडिल क्लास और लोअर क्लास का आदमी कमाने वाला था, उसके माथे में कर्ज नहीं था। आज का पीरियड में ये कर्ज हो गया है पेट पोसने खातिर कि वो अपने आप से अपना इज्जत बचा नहीं सक रहा, और इज्जत नहीं बचाने का कारण है कि आज की पीरियड में इतना खुदकुशी हो रहा है। पैसा किसी से ले रहा तो नहीं दे सक रहा, तो वो मार दे रहा उसको। माने घर का आदमी, छोटा छोटा बच्चा भी जलील हो जा रहा अपने बाप का। अगर आज किसी के बाप माँ को कोई मार दे रहा, किसी से पैसा ले लिया है, उसके घर में 4 परिवार है, एक वाइफ है, एक माँ है, 2 छोटा बच्चा है, पढ़ना लिखना खिलाना, अब उसको मार दिया तो वो कैसे चलेगा? ये सरकार कभी सोची है? और ये पूरे इंडिया के अंदर में हो रहा है, कहीं एक जगह नहीं हो रहा। और इससे पब्लिक माने इतना परेशान हो गया है कि पब्लिक आवाज़ नहीं उठा रहा है डर से, और कोई बात नहीं है, डर से। मगर पब्लिक को ये मालूम नहीं है कि हमको कल भी मरना, आज भी मरना और अभी भी मरना। और अगर पब्लिक सही से आवाज़ नहीं उठाया तो ये नुकसान पब्लिक का है। ये किसी भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, बाप हो, चचा हो, भतीजा, माने किसी का भी नुकसान। और एक परिवार के अंदर में अगर एक नुकसान होता है तो उस परिवार के पीछे में मिनिमम कम से कम 5 परिवार है, तो 5 परिवार का लाइफ डैमेज हो जा रहा है। हाँ, ये सारी बातें हैं। हाँ, और इससे ज़्यादा तो हमसे ज़्यादा समझदार सरकार लोग है, मगर सरकार लोग अपना मगर हर चीज़ गर्म कर ले रहा और आवाम को पीछे छोड़ दे रहा। आपकी तारीफ? हमारी ताब मोहम्मद मानो कुरैशी, आसनसोल, बोतल मस्जिद के पास रहते हैं। Biofina, drink healthy, stay healthy, lychee flavor. For trade inquiry, mail
care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. আপনার গ্যাস আছে কিন্তু কেনার জন্য টাকা নেই, একজন ব্যক্তির উক্তি। पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस की कीमत पे जो इजाफा होता जा रहा है, आसमान छूती महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों की कमर तोड़ महंगाई ज़्यादा खासकर हो रही है। इसके बारे में आपके सरकार से क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं, और आप इसका सामना किस में कर रहे हैं? हमारा राय ये है कि गैस खरीदने का पैसा ही नहीं है हमारे पास। सिलेंडर है 350 रुपये में लेते थे, अभी मैंने 1000 रुपया हो गया, तो कहाँ से आएगा? महंगाई दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो सब गरीबी हटाओ, माने गरीबी लोग को मार दो, जान मार दो। सब जिसके पास पैसा वही कमा। अब वैकेंसी कोई है ही नहीं है। 5 साल से जब से ये सरकार है, एक भी वैकेंसी नहीं छोड़ा। सबका उम्र पास हो गया। पास होने के बाद में फिर तो वैकेंसी निकलेगा भी, वो लड़का लोग कहाँ जाएगा? इसका उम्र चला गया। बताइए आप, ऐसे करने से महंगाई बढ़ने से ऐसे चलेगा? ये सरकार तो मैंने जिस तरीके से हैंडलिंग कर रहा है, मैंने दैट इज़ रॉन्ग। समझे? इसलिए हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि जितना जो महंगाई बढ़ रहा है तो कम करने की कोशिश कीजिए। समझे? जितना हम लोग आम पब्लिक है, हम लोग जितना है, वी आर ऑल पब्लिक, आई टेलिंग टू यू, वाई डिड यू मैंने एक्सेस मैंने क्या बोले एक्सेस मार्जिन, उस मार्जिन से कि कैसे चलेगा बताइए आप? ऐसा करने से होगा? नहीं होगा। हम तो अभी देखिए गैस का कोयला खरीदने का पैसा नहीं है मेरा, हम बेकार हैं। बोलिए। हम बेकार हैं। मेरा अभी 65 से 66 रनिंग हो रहा है, उसमें मेरा वृद्धा पेंशन भी नहीं हुआ अभी तक। पेंशन बताइए, तो सब कुछ रुका हुआ है। इससे पहले आपने क्या वृद्धा पेंशन का फॉर्म फिलअप किए थे? 3-4 बार किया है, क्या हुआ? नहीं हुआ। इससे क्या समझ में आता आपको? इसमें समझ में आता है कि सरकार पैसा देगा नहीं हम लोग को, गरीबी हटाओ, मैंने हम लोग मर जाएंगे, आदमी लोग जिंदा रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मिला है। बहुत से लोगों को मिला, लेकिन हमें कहाँ मिला? रनिंग 66, मैंने हमारा उम्र हो रहा अभी 65। कितने बार आपने फॉर्म फिलअप किए? हमने किए 3-4 बार। एक बार भी कोई नहीं। और किसी लीडर पास गए बात पूछने के लिए कोई खबर नहीं पूछने गए? CPM का हम लोग का एक्सीडेंट ना, बीजेपी का आशा शर्मा थी, उसका पास में गए, वो तो दौड़ाते दौड़ाते माथा खराब कर दिया, लास्ट में घो हो गया। समझे? वो तो आरो काम नहीं किया। मेरा वृद्धा पेंशन के लिए बहुत बोले, डायरेक्ट जाके नहीं हुआ अभी। आप देखिए क्या होता है। फिर हम इसमें भी भरे थे द्वार सरकार में, उसमें भी हमारा नहीं हुआ। अच्छा, कोशिश किए जा रहे हैं, अब देखा जाए कहाँ मिल जाए। आपका नाम? हमारा नाम कृष्णा ठाकुर, MB लाइन आसनसोल। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. রানীগঞ্জ থেকে সঞ্জয় দাসের অনুসারে আজ সকাল 9টায় গির্জাপাড়া কাঠগড়া থেকে একটি সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বের করা হয়। সূর্যের প্রখর তাপ সত্ত্বেও নারী ও মেয়েদের উত্তেজনা ছিল প্রশংসনীয়। স্থানীয় কাউন্সিলর রাজু সিংহ তাদের সাথে ছিলেন। এটি দ্বিতলা মাতা মন্দির পৌঁছে কলস স্থাপন করা হয়। SMS of the moment. All the things that hurt you actually teach you. আপনাকে আঘাত করে এমন সমস্ত জিনিস আসলে আপনাকে শেখায়। Thank you for watching our video. If like
it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.